عالمی مقابلے حسن میں حصہ لینے کے لیے حیدرآباد آنے والی حسیناؤں نے ناگرجنا ساگر ڈیم پر تصویر کشی کی۔ حیدرآباد میں منعقد ہو رہے عالمی مقابلے حسن میں حصہ لینے کے لیے دنیا کی مختلف ممالک سے حیدرآباد آنے والی حسیناؤں نے ناگرجنا ساگر ڈیم پہنچ کر خوبصورت نظاروں سے لطف اٹھایا۔ حسیناؤں نے بدھا ونم پارک کا مشاہدہ کیا اور تقریباً 22 حسینائیں ناگرجنا ساگر پہنچی اور انہوں نے محکمہ سیاحت کے گیسٹ ہاؤس میں کچھ دیر آرام کیا اور پھر وہ ناگرجنا ساگر ڈیم پہنچی جہاں پر انہوں نے تصویر کشی کی۔ AIMIM کاروان MLA کوثر محی الدین نے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی پریزیڈنٹ AIMIM کی ہدایت پر کاروان کے MLA کوثر محی الدین نے گولکنڈہ، چھوٹا بازار، صالح نگر، کانچا، دھنکوٹا، حکیم پیٹ، KGN اردو میڈیم جیا اسکول اور گورنمنٹ اسکول کے اطراف و اکناف کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے NP4 پائپ لائن، سیوریج لائن، باکس ڈرین اور نئی واٹر لائنز کی تنصیب کے کاموں کا معائنہ کیا اور عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی۔ دریں اثنا انہوں نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت جاری کی کہ وہ ترقیاتی کاموں کو تیزی سے انجام دیں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ کارپوریٹر محمد نصیر الدین، وجیہ الزماں ہارون فرحان کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے سوشل میڈیا پر ان کے BRS چھوڑنے سے متعلق گشت کر رہی خبروں کی تردید کی اور واضح کیا کہ پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ سابق وزیر وسیدی پیٹ کے MLA ہریش راؤ نے منگل کو تلنگانہ بھون میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ان کے BRS چھوڑنے سے متعلق گشت کر رہی خبروں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان خبروں میں کوئی سچائی نہیں ہے، وہ بھارت راشٹریہ سمیتی سے ہی جڑے رہیں گے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ وہ پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں اور اب بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ KCR ان کے صدر ہیں اور وہ KCR کی ہی پیروی کریں گے۔ سابق وزیر نے کہا کہ اگر پارٹی کی قیادت KTR کو سونپی جاتی ہے تو اس کا خیر مقدم کریں گے۔ ایک کارکن کے طور پر وہ ہمیشہ پارٹی کے فیصلے اور KCR کے فیصلے کا احترام کرتے رہیں گے۔ دریں اثنا انہوں نے کانگریس حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے اور وہ تمام لوگ جنہوں نے کانگریس پر اعتماد کیا تھا انہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ لوگ اب KCR کا انتظار کر رہے ہیں۔ سابق وزیر نے یقین ظاہر کیا ہے کہ جب بھی ریاست میں انتخابات ہوں گے تو بھارت راشٹریہ سمیتی برسر اقتدار آئے گی۔ నేను గింత మంచిగా మాట్లాడితే నువ్వేందే సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన వార్తల మీద ట్విట్టర్లో నేను అదే రోజు ఖండించిన ఒకటి. రెండు, చివరికి మా నాయకులు దాసోజు శ్రవణ్ గారు ఎర్రోల శ్రీనివాస్ గారికి చెప్పి పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ కూడా ఇచ్చి ఆ కంప్లైంట్ను కూడా నా ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేసి ఇటువంటి ఫేక్ ప్రచారం నమ్మొద్దని తక్షణమే DGP గారు వీళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా నేను రాష్ట్ర DGP గారిని కోరిన విషయం కూడా మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా. ఏం రఘు గారు? ఆ పంచాయతీ లేదు మా పార్టీలో. నేను చాలాసార్లు కూడా చెప్పాను, మీరందరూ కూడా చూసింటారు. ఒక్కసారి కాదు కొన్ని వందల సార్లు చెప్పి ఉంటాను. ఇవాళ KCR గారు మా పార్టీ అధ్యక్షుడు, ఆయన యొక్క ఆదేశాలను తూచా తప్పకుండా పాటించే ఒక క్రమశిక్షణ కలిగిన కార్యకర్త హరీష్ రావు అని చెప్పిన. ఇది బహుశా వందల సభల్లో చెప్పిన, టీవీ డిస్కషన్స్లో చెప్పిన, ప్రెస్ మీట్లలో చెప్పిన, చిట్చాట్లో చెప్పిన, అనేక సందర్భాల్లో కూడా చెప్పిన. సో మీరు అన్నట్టు KTR గారికి నాయకత్వం అప్పచెప్తే స్వాగతిస్తాను. డెఫినెట్గా ఐ కోఆపరేట్. ఒక కార్యకర్తగా హరీష్ రావు పార్టీ నిర్ణయాన్ని, KCR నిర్ణయాన్ని ఎప్పుడైనా శిరసా వహిస్తాడు తప్ప గీత దాటే వ్యక్తి కాదు. ఇది నా 25 ఏళ్ల రాజకీయ ప్రస్థానం చూపిస్తుంది. 25 ఏళ్ల నుంచి నేను BRS పార్టీలో ఉన్నాను. పార్టీ జెండా పుట్టుక నుంచి ఈ రోజు వరకు KCR గారి అడుగుజాడల్లో వారి సూచనలకు అనుగుణంగా పనిచేసేటువంటి ఒక కార్యకర్తగా హరీష్ రావు పనిచేసిండు, రేపు కూడా చేస్తాడు. థ్యాంక్ యూ. عازمین حج کا 7واں قافلہ تلبیہ کی گونج میں حج ہاؤس نامپلی سے روانہ. عازمین کی روانگی کے وقت حج ہاؤس کی عمارت
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की इज्तिमाई सदाओं से गूंज उठी। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के जरिए आज़मीन हज का 7वां काफिला तलबिया की गूंज में हज हाउस नामपल्ली से रवाना हुआ। काफिले में 279 आज़मीन शामिल थे। आज़मीन हज के रुखसती के मौके पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की इज्तिमाई सदाएं गूंज उठी, जिससे एक ईमान अफरोज मंजर देखने को मिला। आपको बता दें कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के सदर नशीन मौलाना खुसरो पाशा, हाफिज पीर खलीफ अहमद, जनरल सेक्रेटरी जमियत उलमा तेलंगाना ने आज़मीन की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क़ब्ल आज़मीन से खिताब करते हुए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी सदर नशीन ने बताया कि अब तक 1957 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं। उन्होंने आज़मीन हज को कहा है कि वो इस मुक़द्दस सफ़र के दौरान मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के आदाब को मलहूज़ रखें, सब्र व तहम्मुल से काम लें और किसी भी किस्म की बेअदबी व शिकायत से इज्तनाब करें। आज़मीन को मशवरा दिया गया है कि वो वापसी पर अपने साथ सोने के ज़ेवरात और इलेक्ट्रॉनिक वगैरह लाने से गुरेज करें, बसूरत दीगर उन्हें कस्टम्स में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। आज़मीन की रवानगी के मौके पर उनके अहले खाना, हज कमेटी के ओहदेदारान व दीगर देखे गए बहुत से लोग अपने अजीज़ों को अलविदा कहते हुए जज्बात से मग़लूब नजर आए। हाफिज पीर खलीफ अहमद, जनरल सेक्रेटरी जमियत उलमा तेलंगाना, मुफ्ती यूनुस कासमी करीमनगर ने हज और हज की सादत पर बयान किया, जबकि मुफ्ती इलियास अहमद कासमी, रुकन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने इस मौके पर दुआ का एहतमाम किया। ख्वाजा कलीमुद्दीन, सदर जमियत उलमा तेलंगाना ने तकरीब के इख्तिताम पर दुआएं की। मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद लईख, अराकीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सज्जाद अली, इरफान शरीफ, AEO हज कमेटी, ख्वाजा नसीरुद्दीन व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और बीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस में लड़कियों की तालीम और तरबियत के पेश नज़र अपने नौइयत के मुनफरिद तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारे की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरस्कार इमारत कुशौदा क्लासरूम में आपकी शहजादियों की तालीम और तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की ख़वातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंचे। वलीअहद शहजादा सलमान बिन मोहम्मद ने अमरीकी सदर का इस्तकबाल किया। मशरिक़ वस्ता के 4 रोज़ा अहम दौरे का आगाज़ करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंच गए। वलीअहद शहजादा सलमान बिन मोहम्मद ने अमरीकी सदर का इस्तकबाल किया। शाही महल पहुंचने पर दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। चौबंद दस्ते ने अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमरीकी सदर घोड़सवारों के हिसार में रॉयल पैलेस पहुंचे, जहां पर उनका खैर मकदम किया गया और अरबी कहवा पेश किया गया। डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की बंद कमरे में मुलाकात हुई है और इतलात के मुताबिक दोनों ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस वापसी के बाद ये अमरीकी सदर का पहला बड़ा बैनुल अक़वामी दौरा है। वो इस दौरे में कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएंगे। AIMIM याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने रन बाजार और दबीरपुरा डिवीजन में नालों का तफसीली मुआयना किया। पेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा के MLA जाफर हुसैन मेराज ने मंगल को रन बाजार और दबीरपुरा डिवीजन के मुख्तलिफ नालों बशमुल गंगानगर नाला, मुर्गी नाला, लंदन ब्रिज नाला व दीगर का तफसीली मुआयना किया और अहदेदारों को मौसम बरसात से कबल तमाम तर इक़दाम करने की हिदायत जारी की। इस मौके पर उनके हमरा MLC मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, रन बाजार के कॉरपोरेटर
वासिर उद्दीन दबीरपुरा के कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। आसिफ जाह साबे नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर की 59वीं बरसी के मौके पर मस्जिद जोदी किंग कोटी में वाक़े शाही मकबरे पर चादर गुल पेश की गई। इस मौके पर फातिहा ख्वानी का भी इंतजाम किया गया। आसिफ जाह साबे नवाब उस्मान अली खान बहादुर की 59वीं बरसी 13 मई को मनाई गई। शाही मकबरा अंदरून मस्जिद जोदी किंग कोटी में कुरान ख्वानी कसीदा बुर्द शरीफ का एहतमाम किया गया। बाद अज़ां आसिफ जाह साबे के मज़ार पर गिलाफ तब्दील किया गया और चादर गुल पेश करने के बाद फातिहा ख्वानी की गई। आपको बता दें कि दीगर ज़ायरीन के लिए दोपहर 12 बजे तक रात 9 बजे शाही मकबरा खुला रखा गया है। M.A. फैज़ खान रुकन औक़ाफ़ कमेटी HEH द निज़ाम ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नानानगर डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने नानानगर जंक्शन से टोली चौकी फ्लाईओवर तक जारी खूबसूरती के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कारवान के MLA कौसम मोहिउद्दीन की हिदायत पर नानानगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने GHMC के डिप्टी EE रामकृष्णा और AE उदय के हमरा नानानगर जंक्शन से टोले चौकी फ्लाईओवर तक जारी खूबसूरती के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। खूबसूरती के कामों के एक हिस्से के तौर पर तमाम डाइवर्टर्स, साइड ग्रिल्स और फुटपाथ पर पेंटिंग की गई है और गड़ों की भी मरम्मत करते हुए मलबे को साफ कर दिया गया है। हैदराबाद के आखिरी निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर की 59वीं बरसी के मौके पर 7वें निज़ाम खानज़ादा एसोसिएशन की जानिब से उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। आसिफ जाह साबे नवाब उस्मान अली खान बहादुर की 59वीं बरसी के मौके पर 7वें निज़ाम खानज़ादा एसोसिएशन की जानिब से उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। 7वें निज़ाम खानज़ादा एसोसिएशन के सदर नवाब हैदर अली मस्कती और उनके फर्जंद नवाब यूसुफ मस्कती ने इस मौके पर मस्जिद जोदी किंग कोटी में वाक़े शाही मकबरे पर चादर गुल पेश की और हैदराबाद के आखिरी निज़ाम को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उनके हमरा नवाब यूसुफ सफदर मस्कती और एसोसिएशन के दीगर अराकीन मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।